Students, let's continue. One day I stumbled upon a smoldering campfire. I was not alone. I was so scared I hid in a tree. Now, stumbled means कि गलती से स्लिप हो जाना, गिर जाना. Upon a smoldering means smoldering campfire means कि जब हम आग जलाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो बुझ जाती है, उसमें से फ्लेम नहीं निकल रही होती, तो दैट फायर इज़ कॉल्ड स्मॉल्डरिंग फायर. ओके, तो वो गलती से उसका पैर किस पे पड़ गया? स्मॉल्डरिंग कैंप फायर पे पड़ गया, जो उसने नहीं जलाई थी. ठीक है, लेकिन उसने देखा कि उसका पैर ऐसी फायर पे पड़ा. देन ही केम टू नो, उसको लगा कि यहाँ पर तो कोई और भी है. ठीक है, आई वॉज नॉट अलोन. देन ही गेट स्केयर्ड, वो डर गया. एंड हिड इन अ ट्री, और कहाँ छुप गया? पेड़ में छुप गया जाके. आई स्टेड देयर 2 hours, माई हार्ट पाउंडिंग, और वो वहाँ कितनी देर तक छुपा रहा? फॉर 2 hours. एंड हिज हार्ट पाउंडिंग, पाउंडिंग मीन्स जोर जोर से धड़कने लगा. When I calmed down, I hiked back to where the campfire was. To my surprise, there was someone sleeping near the fire. It was Miss Watson's slave. Now, when he calmed down a little, वो कहाँ गया? फिर से कैंप फायर जहाँ लगा रखी थी उस किसी और ने, he went there. और फिर उसने देखा कि वहाँ पर कौन सो रहा है? मिसेस वॉटसन का स्लेव सो रहा है वहाँ पर. ठीक है, और ही वॉज वेरी सरप्राइज्ड टू सी हिम देयर. Now, when that slave also saw the boy Huck Finn, then he also gets surprised. Why he gets surprised? Because he was thinking that the boy was dead, but he was standing in front of him. So here it is written, you ghost has come back to haunt me. कि उसको लगा कि उसका भूत आ गया है. haunt me means डराने के लिए. He was terrified. वो कैसा था? डरा हुआ था. It took a while to convince Jim that I wasn't dead. अब ये जो स्लेव था इसका नाम क्या है? जिम. It took a while to convince him that I wasn't dead. अब इसको जिम को समझाने में थोड़ा टाइम लगा कि वो डेड नहीं है, he is alive. It wasn't until I got out some meat and cooked us breakfast that he finally calmed down. Now the boy took out some meat, cooked the breakfast, and then only that Jim calmed down. Jim had run away the night he heard I was killed. He hasn't brought any food with him and had been living on wild berries. अब जिम भी जिस रात ये बॉय हकबेरी भागा था उसी रात ये जिम भी वहाँ से भागा. एंड ही हैज़ नॉट कैरिड एनी फूड विद हिम, कोई खाना नहीं लाया था. सो फ्रॉम दैट डे ही वॉज लिविंग ओनली ऑन वाइल्ड बेरीज. वाइल्ड बेरीज खाकर ही काम चला रहा था. I told Jim how I had faked my death. Now I was rid of Pap and the widow and the money. Now the boy Huckberry told the Jim that how he has planned his death. झूठ मूठ की डेथ कैसे प्लान करी. And now he is rid of means उसको छुटकारा मिल गया है. Pap उसके फादर और widow जिसके पास वो रह रहा था, and from the money. I asked Jim why he had run away. He had a family and I knew that Miss Watson treated him well. अब हक ने पूछा जिम से कि why he ran away. भाई तुम क्यों भाग आए? Because you have a family. तुम्हारे पास तो एक फैमिली भी है और मिसेस वॉटसन जो है तुमको अच्छे से ट्रीट करती हैं, तो why you ran away? Jim said that Mrs. Watson wanted to sell him downriver in New Orleans for $800. That's why he ran off. अब जिम ने क्या बताया कि जो उसकी
जिनका वो स्लेव है, दिस इज वॉटसन का, वो उसको बेचना चाहती हैं कितने में, इन $800. दैट्स वाई ही ran off from there. His plan was to swim across the river to Illinois, which was a free state, but it was too far, so he settled for the island. अब जिम का क्या प्लान था? To cross the river, because across the river there was a state which was free state, तो वो वहाँ जाना चाहता था, but it was very far, तो उसको कहाँ रुकना पड़ा? आइलैंड पर. He was afraid that I would tell someone where he was. I said I wouldn't, and we swore an oath to keep each other's secret. Sorry. Now Jim was afraid कि ये लड़का जो है मेरा कहीं सीक्रेट ना बता दे, किसी को बता ना दे कि मैं कहाँ छुपा हूँ. तो लेकिन दोनों ने फिर ओथ लिया. ओथ मीन्स शपथ ली कि हम एक दूसरे का सीक्रेट किसी को भी नहीं बताएंगे. Now this worried me some. I didn't want anyone to know I had helped a slave escape. I had a reputation to uphold and didn't want to be called an abolitionist. At the same time, I didn't want Jim to get caught. Now, the boy was thinking here that कि मैं ये जो स्लेव को मैंने बचाया, ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इससे मेरी रेपुटेशन कैसी हो जाएगी? खराब हो जाएगी. ऐसा वो क्यों सोच रहा था? क्योंकि उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे एनवायरनमेंट में हुई थी जिसमें स्लेवरी को राइट मानते थे, ठीक मानते थे कि दैट स्लेवरी इज़ द राइट थिंग. तो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हुआ था, इसीलिए वो ऐसा सोच रहा था. लेकिन दूसरी तरफ उसको ये भी लग रहा था कि स्लेवरी नहीं होनी चाहिए. ही वॉज एक्चुअली नॉट श्योर अबाउट वेदर दिस स्लेवरी इज़ अ गुड थिंग और अ बैड